just started ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਫਿਲਮ ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਓਮ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। As Saregama, we are making films under Udly brand, and we have a lot of belief in regional cinema of India. We feel Punjabi as a culture and as a language is something the cinema can go not just to Punjabi audiences, it can start to become a pan-India success. ये success हम already South Indian films में देख रहे हैं, पुष्पा जैसी फिल्में देख ले, KGF जैसी फिल्में देख रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि पंजाबी फिल्म्स भी पैन इंडिया चले। कल्चर जो पंजाबी कल्चर है वो बिल्कुल ही पैन इंडिया ऑलरेडी है। म्यूज़िक का इम्पैक्ट, पंजाबी म्यूज़िक ऑलरेडी पैन इंडिया है। हम चाह रहे हैं कि सिनेमा का भी इम्पैक्ट अगर पैन इंडिया किया जाए तो बहुत ही बिजनेस सेंस बनता है। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਲਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। कि जो रिश्ते आस्ते बनते हैं वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं, तो उम्मीद है कि ये बहुत ही मजबूत एक रिश्ता बनेगा। और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि हम आके अनाउंस कर रहे हैं कुछ और आपको फिर रिजल्ट ना दिखे। ना मैं चाहूँगा, ना मुनीश जी चाहेंगे, तो ये आप रिजल्ट भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म देखेंगे। हम जो मुनीश जी कहेंगे वही करेंगे। अच्छा, वही करेंगे। वैसे हमारी एक दो प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं और एक्सपेरिमेंटल जोन में ही हैं। अच्छा, है ना? तो सस्कुटनी पार्ट 2 हमारी अनाउंस हो चुकी है और क्या अनाउंस किया हमने पाजी? वार्निंग 2 अनाउंस की है हमने साथ में। हमें लगता है कि पंजाब में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम पोइट्री देख लें, लिटरेचर देख लें, अगर हम म्यूज़िक देख लें, स्टोरी टेलिंग देख लें, हमेशा से पंजाब आगे रहा है इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि ये इतना डीप और पुराना कल्चर है, तो ये कल्चर चलेगा ही। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟਾਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਯੂਡਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਕਲੀਗ ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੈਲਕਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਲਈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜੀ ਜਸਟ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਸਟਾਰਟਡ ਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਫਿਲਮ ਫਰਟਰਨਿਟੀ। ਸੋ ਓਮ ਜੀ ਐਂਡ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਜੁਆਇੰਟ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਅਨਟੋਲਡ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਟੂ ਮੇਕ ਸਮ ਗੁੱਡ ਫਿਲਮਸ, ਗੁੱਡ ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਫੇਸ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਛੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਨਾਲ, ਸਾਹਿਲ ਜੀ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਸੋ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਮੇਬੀ ਉਹਦਾ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਵੀ ਫਾਊਂਡ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਕੋਲੈਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਥਰੂ ਸਿਨੇਮਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਣ। ਸੋ ਪ੍ਰਾਈਮਰਲੀ ਇੱਕ ਉਹ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਅਗੇਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲਮਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਵੀ ਲਵ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਨਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨਾਓ ਓਵਰ ਟੂ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ। थैंक यू मुनीश जी, थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग। मैं पंजाबी तो नहीं बोल पाऊँगा। As Saregama, we are making films under Udly brand, and we have a lot of belief in regional cinema of India. We feel Punjabi as a culture and as a language
is something the cinema can go not just to Punjabi audiences, it can start to become a pan-India success. ये success हम already South Indian films में देख रहे हैं, पुष्पा जैसी फिल्में देख ले, KGF जैसी फिल्में देख रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि पंजाबी फिल्म्स भी पैन इंडिया चले. कल्चर जो पंजाबी कल्चर है वो बिल्कुल ही पैन इंडिया ऑलरेडी है. म्यूज़िक का इम्पैक्ट, पंजाबी म्यूज़िक ऑलरेडी पैन इंडिया है. हम चाह रहे हैं कि सिनेमा का भी इम्पैक्ट अगर पैन इंडिया किया जाए तो बहुत ही बिजनेस सेंस बनता है. इसलिए हमें एक स्ट्रॉन्ग लोकल पार्टनर की ज़रूरत है जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, who is also older brother to me, who can guide us, who will somebody we can trust in the local market and has the experience. So this is a very nice partnership with Munish Sani ji and Om ji, where we have the trust that we can bring a certain amount of scale to how the films are perceived, and we can also make excellent content. Munish ji has proven time and again. वो जब भी उन्होंने मुझे बताया ये पिक्चर चलेगी, ये पिक्चर अच्छी है, वो ही हुआ है. और जब भी उन्होंने बताया ये नहीं चलने वाली तो वो मैं खुद ही नहीं देखता. तो ट्रस्ट तो बहुत ज़्यादा है. तो अब हम चाह रहे हैं कि ये साथ में एक फॉर्मलाइज करके साथ में बहुत सारी फिल्में बनाएं. फॉर अ लार्ज कंपनी लाइक आवर्स इट मेक्स सेंस इफ देयर इज़ अ लॉट ऑफ वॉल्यूम. हम चाह रहे हैं कि हम वॉल्यूम के साथ मार्केट में आएँ ताकि हम एक इम्पैक्ट पूरा कर पाएँ इस मार्केट के लिए. Thank you. Thank you so much, sir, for sharing your views with us. So now I would request to our media persons if you have any query. Hi sir, how are you? Welcome to Punjab, Chandigarh. So मेरा क्वेश्चन आपसे है सर. कहते हैं प्यार सर दोनों साइडेड से होता है. तो आप तो हिंदी बोल रहे हो, पंजाबी फिल्में आपने रीजनल शायद देखी ना हो. ओम जी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रुप एंड मोस्ट सक्सेसफुल ऑल्सो इन पंजाब. सो हाउ डिड यू फाइंड दैम बेसिकली? मेरा ये क्वेश्चन ज़रूर है क्योंकि सारेगामा इज़ अ रिनोन्ड ब्रांड ऑलरेडी. तो यूडल रीजनल सिनेमा में जंप कर रहा है, तो पंजाब में हाउ डिड यू फाइंड सर? So the first inquiries we started to make with friends, जो हमारे जान पहचान के लोग हैं, कि पंजाब मार्केट में अगर हम जाना चाहें तो हम किससे मिलें. तो पहले एक दो लोगों ने मुनीश जी का ही नाम लिया. और जब हम पहले आए थे, आई थिंक 1.5 साल पहले रेकी करने, तो हमने पहले खाना मुनीश जी के घर से ही खाया था. हम उनको जानते नहीं थे, तब से रिश्ता बना हुआ है. अब जाके हमने ये फॉर्मलाइज किया अरेंजमेंट. तो जो आप प्यार की बात कह रहे थे, मैं यही बोलूँगा कि जो रिश्ते आस्ते बनते हैं वो ज़्यादा मजबूत बनते हैं. तो उम्मीद है कि ये बहुत ही मजबूत एक रिश्ता बनेगा. और लॉन्ग टर्म के लिए ऐसा नहीं है कि हम आके अनाउंस कर रहे हैं कुछ और आपको फिर रिजल्ट ना दिखे. ना मैं चाहूँगा, ना मुनीश जी चाहेंगे. तो ये आप रिजल्ट भी देखेंगे और लॉन्ग टर्म देखेंगे इसको. So सारेगामा is known for the love. So basically लव स्टोरी आएगी पहली आपकी, या कुछ ऐसा होगा कि कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे आप इनके साथ, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल बहुत है. हम जो मुनीश जी कहेंगे वही करेंगे. अच्छा, वही करेंगे. वैसे हमारी 1-2 प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो चुकी हैं और Would you like to share एक्सपेरिमेंटल जोन में ही हैं, अच्छा, है ना. तो सस्कुटनी पार्ट 2 हमारी अनाउंस हो चुकी है. और क्या अनाउंस किया हमने पाजी? वार्निंग 2 अनाउंस की है हमने साथ में. तो ये फिल्में तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी हैं, इनकी रिलीज डेट्स भी आ चुकी हैं. ये लव स्टोरीज नहीं है बट बहुत प्यार से बनाई गई हैं. तो ऑलरेडी हिट हैं जो. ये हिट है. तो हेलो सर. नमस्कार जी नमस्कार जी. सर एक और बात है कि जैसे पंजाबी सिनेमा अब धार्मिक फिल्मों की तरफ भी आने लगा, जैसे मस्ताने का अच्छा रिस्पॉन्स आया है, तो क्या आपकी तरफ से भी ऐसा कोई कंसेप्ट लाने की तैयारी है, या संजय दत्त भी जो है वो बॉलीवुड से अब पंजाबी की तरफ रुख कर रहे हैं, पंजाबी फिल्मों की? तो बॉलीवुड की तरफ से तो हम तो चाहेंगे जैसे साउथ की फिल्में बनती हैं जी. और बॉलीवुड वाले उनकी राइट्स उठा के फिर रीमेक करते हैं हिंदी में. हम चाह रहे हैं कि ये पंजाबी सिनेमा में भी हो. अगर हम देखें, अभी हम बात कर रहे थे करवा चौथ का टाइम है, तो ऑल हस्बैंड्स आर वरीड कि बीवी के लिए क्या करना है. तो ये जो कल्चर है जो पंजाब से निकला है, ये पूरे इंडिया में चला गया है. अगर हम पंजाबी म्यूज़िक देखें तो पंजाबी म्यूज़िक, हम मलयालम में बहुत फिल्में बनाते हैं, तो अगर हम किसी की गाड़ी में बैठते हैं उसको पंजाबी म्यूज़िक के बारे में पता है. हम चाह रहे हैं कि हम मुनीश जी के साथ ऐसी फिल्में बनाएं कि वो पंजाबी फिल्में भी देखने लग जाएं. तो एक पैन इंडियन सक्सेस अगर आ सके
तो एक बहुत बढ़िया बात है। सही बात है कि यह सत्या फिल्म का गाना सपने में मिलती लड़की काफ़ी हिट हुआ था, तो ऐसे कुछ और भी प्रोजेक्ट है। एक और बात है कि जैसे पहले कॉमेडी का जो पाकिस्तानी और इंडिया कॉम्बिनेशन फिल्म में बहुत सुपर हिट चल रहा है, जैसे चल मेरा पुत फिल्म आई सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਟ ਕੇ ਜੋ ਸਟੋਰੀਆਂ ਰੀਅਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? हाँ मनीष जी बताइए। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਭਾਜੀ ਨਵੀਆਂ ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹਨਾ, ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਡੀਅנס ਦੇ ਟੇਸਟ ਔਰ ਫਲੇਵਰ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਗੇਨ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪਲਾਨ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਜੀ ਜੀ ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਚ ਖੇਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੋਲਰ ਪਾ ਕੇ ਮੈਚ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸਾਰੇ ਬੈਟਸਮੈਨ ਤੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਬਿਲੀਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੇ ਬੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੇਰਾ ਮੇ ਬੀ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਨਾਰਥ ਤੱਕ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਆਲਰੇਡੀ ਫॉर ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਵਰਲਡ ਓਵਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਲਮਸ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਰ ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਫਿਲਮਸ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ, ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਫਿਲਮਸ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ, ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੈਡਲੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਿਟਵੀਨ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਯੂਡਲੀ ਐਂਡ ਓਮ ਜੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟਰੈਂਥਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਆ ਕੇ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨ ਔਰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ, ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਸੋ ਸਿਧਾਰਥ ਜੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮ ਚੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਪੁਟ ਆਏਗਾ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਵੈਲਿਊ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮਸ ਦੇ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਫਿਲਮਸ ਦੀ ਰੀਚ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। So hello sir, Kamya this side from Gabru TV. First of all, welcome in Punjab. My question is from you, Siddharth sir. The thing is, you said कि we are just going to see कि wondering कि South की जो movies आई है ना, पुष्पा जैसी movies है. So can we कि हमें पंजाब इंडस्ट्री में भी कुछ ऐसे हाई लेवल के प्रोजेक्ट्स देखने को मिलेंगे, बिकॉज इट्स अ बिग कोलैबोरेशन एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस आल्सो टू बोथ ऑफ यू. सो कैन वी सी द बिग प्रोजेक्ट्स कमिंग थ्रू द फ्रॉम कोलैबोरेशन? Definitely, the idea is to make bigger projects. We are starting now, so you're seeing certain projects which are already happening in the industry. But the reason for collaboration is, can we increase the scope of Punjabi films? Punjabi speaking audiences are not just available in international centers like Canada and North India. I think there's a lot of scope in Mumbai, where the films are starting now to get some recognition, where we can do concerts with musicians like Diljit, and he sells out tickets within 2 days. So why can the same craze not happen with the cinema? And that is the problem that we want to solve together. That is the reason for our collaboration. But like anything, हम पहले छलांग नहीं मारेंगे, हम एक एक कदम लेके वो लैडर चढ़ना चाहते हैं. Thank you. नहीं, ब्रांड तो देखो जी, पहले एक नाम था, अब वो नाम से तो ऑलरेडी ब्रांड में कन्वर्ट किया, तो वो हाँ जी नहीं, इंटरनेशनल फॉर प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन तो हम ऑलरेडी करते ही हैं। तो ये जो कोलैबोरेशन है, ये कोलैबोरेशन में ब्रांड्स डेफिनेटली दोनों के अपने अपने सेपरेट ही होंगे जो एज इट इज़ हैं, बट फिल्म्स हम लोग कलेक्टिवली बनाएंगे।
ਸਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕਮਲ ਦਿਸ ਸਾਈਡ। ਸੱਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਹੀ ਬੋਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਮਤਲਬ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਰੀਨਾਊਂਡ ਫੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਐਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਵਰਕ ਕਰੂੰਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵੱਡੇ ਦੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਵਰਕ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟਸ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਐਕਟਰ, ਨਵੇਂ ਐਕਟਰਸਿਸ, ਨਵੇਂ ਮਤਲਬ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਕਾਸਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫॉर श्योर ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਫਿਲਮਾਂ ਬੰਦੀਆਂ ਸੀ, 70-80 ਫਿਲਮਾਂ, 100 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਫੇਸਿਸ ਨਾਲ ਤੇ 70-80 100 ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨਵੇਂ ਫੇਸਿਸ, ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕਾਸਟ, ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਕੰਟੈਂਟ, ਉਹ ਹਰ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਡੀਅנס ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਨਾਲ रिसीव किया। सिद्धार्थ सर, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, आपका तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, हिट और फ्लॉप का कोई फार्मूला होता है कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी? क्योंकि मेरे को लगता है ये ऐसा बिजनेस है, कभी हम सोच लेते हैं कि बहुत अच्छा होगा, वो होता नहीं है। कभी हमने एक्सपेक्ट नहीं किया होता, मोर देन एक्सपेक्टेशन हो जाता है। पाजी, प्यार का बिजनेस है, हम तो हमेशा कहते हैं अपना बच्चा सबको अच्छा लगता है। तो इसलिए जब आप कुछ बनाते हो तो बनते बनते आपको उससे प्यार हो जाता है, उसके बाद आपको पता नहीं कि अच्छा होगा बुरा होगा। इसलिए कोलैबोरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका पार्टनर शायद आपको बता पाए। दूसरी बात है हिट और फ्लॉप की, जैसे मुनीशी कह रहे थे कि हमने ऑडियंस की जो मूड है ना उसको समझना है, लेकिन हम आज ऑडियंस की मूड समझ के अगर पिक्चर शुरू करेंगे तो ऑडियंस की मूड 1.5 साल बाद जब पिक्चर रेडी होगी तो बदल सकती है। इसलिए इस इंडस्ट्री में बहुत सारा अनसर्टेनिटी है, लेकिन एक चीज़ हमेशा से चली है, अगर आपने अच्छा कंटेंट बनाया है और कुछ नया दिखाया है ऑडियंस को, उसकी मार्केटिंग अच्छे से की है, तब ऑडियंस ज़रूर आपको सपोर्ट करती है। तो जैसे मुनीशी कह रहे थे, एक्सपेरिमेंट इसलिए चलें क्योंकि कंटेंट उसमें अच्छा है। सेम चीज़ फॉर्मूला से अगर बनाई जाएगी तो फिर वो नहीं चलेगी। मैंने सिर्फ इतना सीखा है, अब इसमें कोई तो ऐसा नहीं है एब्सोल्यूट राइट और रॉन्ग हो। ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਫਿਲਮਸ ਆਣੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਲੈਂਗੁਏਜ 'ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ। 150 ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮਾਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 150 ਚਲਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਥਿੰਕ 4-4 5-5 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀਕ 'ਚ ਹਰ ਵੀਕ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਆਡੀਅੰਸ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਸ ਬੰਨੀਆਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖੁਦ ਰਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਈਏ ਔਰ ਰਾਈਟ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ 200 400 500 ਰੁਪਏ ਔਰ 3-4-5 ਘੰਟੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਮਨੀ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟੂ ਆਡੀਅੰਸ। सर लास्ट क्वेश्चन है मेरा, मैं आनंद सर से ही पूछना चाहूँगा दोबारा। सर पंजाबी च पूछा, समझ आ जाएगी? हाँ। सर मैं ये पूछना कि पंजाबी फिल्मां और पंजाबी वैब सीरीज़ ਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਬੰਬੇ ਸਾਈਡ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਓਮ ਜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੇ ਹਿੱਟ ਹੋਈਆਂ ਉੱਥੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੋਕ ਉੱਥੇ? मैंने तो बहुत देखी हैं, क्योंकि मुझे जो पागल कॉमेडियाँ होती हैं पंजाब की मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि हंसना किसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए मुझे लगता है कि क्योंकि पंजाब, जो मैं पहले कह रहा था, पंजाब कल्चर पूरी इंडिया में मशहूर है और एक्सेप्टेड है। म्यूज़िक ऑलरेडी मशहूर है, एक्सेप्टेड है। खाना आप कहीं भी जाएंगे, मतलब आप बाहर भी जाएं तो इंडियन रेस्टोरेंट आपको पंजाबी खाना देता है, राइट? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि फिल्म्स में अभी बहुत स्कोप है। जैसे मुनीशी भी कह रहे हैं कि अभी तक हम सिर्फ 100 फिल्में बना रहे हैं इंडस्ट्री में, और बाकी इंडस्ट्री, मराठी इंडस्ट्री जो बहुत छोटी इंडस्ट्री है, उसमें ज़्यादा फिल्में बन रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि स्कोप बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री में,
लेकिन कंटेंट थोड़ा और वेरीड होना चाहिए। हम अभी देख रहे थे कभी कभी ना और मुझे लगता है पंजाब की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है। अगर वो एक पिक्चर ऑलरेडी बन चुकी है, बेशक वो 4 साल पहले हो, तो ट्रेलर के नीचे ही कमेंट आ जाता है यूट्यूब पे कि यार ये तो देख चुके हैं। तो ऐसी चीज़ें ना हो, कुछ फ्रेशनेस आए। पाजी इससे पहले कह रहे थे अगर आप नया टैलेंट ला सकते हैं, तो मैं उनके लिए यही कहूँगा, हमारे लिए ये आइडिया है कि हर बड़ी फिल्म के साथ एक छोटी फिल्म भी बननी चाहिए। क्योंकि अगर वो बड़ी फिल्म, जैसे अगर हम किसी OTT प्लेटफॉर्म या किसी सैटेलाइट को बेचने जाएं, तो हम ये भी कह सकते हैं देखो इसके साथ एक छोटी फिल्म है, ये भी ले लो, इसको भी सपोर्ट करो। इससे टैलेंट बढ़ता है और टैलेंट उभरता है। हमें लगता है कि पंजाब में क्रिएटिव टैलेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम पोइट्री देख लें, लिटरेचर देख लें, अगर हम म्यूज़िक देख लें, स्टोरी टेलिंग देख लें, हमेशा से पंजाब आगे रहा है इन चीज़ों में। तो मुझे लगता है कि ये इतना डीप और पुराना कल्चर है, तो ये कल्चर चलेगा ही।